آپ سلفی کہتے ہیں نا، سلف کی میں تو سلف سے دکھاؤں گا، میں کسی ایک عالم کی نہیں دکھا رہا، جو علماء اہل حدیث کا مذہب ہے۔ سلف کون، سن لیجیے سلف کون ہے۔ پچھلی اسٹیج میں ہم واضح کر چکے ہیں کہ سلف میں اصل صحابہ ہے، اس میں ہم سلف میں یعنی سلف جن کے فہم کو ہم حجت مانتے ہیں اصل صحابہ ہے۔ صحابہ کے ساتھ جو خیر الناس کرنے والی جو حدیث ہے اس میں ہم شامل کر لیتے ہیں تابعین کو بھی اور اس کے آگے اتباع تابعین کو بھی، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ جو نچلے طبقات ہیں ان کی بات صحابہ کے خلاف نہ ہو، کیونکہ صحابہ کے بارے میں قرآن میں پوری صراحت موجود ہے، حدیث میں صراحت موجود ہے کہ ان کے منہج، ان کے طریقے کو فالو کرنا ہے، ان کو لینا، اس لیے قرآن و حدیث کی وہی تشریح ہم مانیں گے جو صحابہ سے ثابت ہو، صحابہ کے خلاف نہ ہو، تو یہی ہمارے سلف ہیں۔ باقی کل جو ہے 100 سال پہلے کوئی شخص تھا، لغوی طور پر آپ ان کو بھی سلف بول دیں، لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں ہم سلفی ہیں، ہم جس فہم کو حجت مانتے ہیں، تو پھر ہماری مراد بس وہی ہے صحابہ تابعین اتباع تابعین، اور اس میں بھی اصل صحابہ ہے۔ یہ سلف کا مطلب ہے۔ سلف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے علماء کو آپ سلف بنا کے پیش کر دو، نہیں، ہمارے علماء لغوی اعتبار سے، دوسرے اعتبار سے سلف ہو سکتے ہیں، لیکن سلف حجت کے اعتبار سے سلف نہیں ہے۔ جب ہمیں کہتے ہیں کہ اتباع دلیل بفہم سلف، قرآن و حدیث کی دلیل کو سلف کے فہم پر لینا ہے، تو وہاں ہماری مراد سلف سے یہ صحابہ ہوتے ہیں، نہ کہ یہ 100 سال پرانے علماء۔ جی اچھا حضرت، امام مالک سلف میں آئیں گے نہیں؟ دیکھیے ہم نے آپ کو بتا دیا کہ سلف میں تو سب آئیں گے، لیکن جب ہم حجت کہتے ہیں نا، سلف کا فہم حجت ہے، جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو اس میں آتے ہیں اصل صحابہ ہی آتے ہیں۔ صحابہ کے بعد تابعین اتباع تابعین، ان کی باتیں اگر صحابہ کے خلاف نہیں گئیں تو ٹھیک ہے، صحابہ کے خلاف گئیں تو پھر صحابہ ہی کا قول فیصل ہوگا، صحابہ کا فہم حجت ہوگا۔ امام مالک جانے دیجیے، آپ جو ہے تابعین کا قول پیش کریں گے، تابعین کا قول پیش کریں گے تو بھی جو ہے ہم اس کو حجت نہیں مانیں گے۔ عطا بن ابی رباح مانیں گے؟ ارے بھائی صحابہ کے خلاف کسی کا بھی قول ہو ہم نہیں مانیں گے۔ اصل کیا ہے؟ اصل ہمارے سلف صحابہ ہیں، صحابہ کے بعد جو ہے ہم تائید میں ان کی بات بھی لیں گے اگر صحابہ کے منہج سے، صحابہ کے فہم سے ان کی بات میچ کرتی ہے، لیکن اگر تابعین بھی صحابہ کے خلاف چلے گئے، پچھلے اسٹیج میں نے کتنی وضاحت کے ساتھ کہا کہ خوارج جو صحابہ کے دور کے تھے، جو جب صحابہ کے خلاف چلے گئے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان سے جب گئے، المستدرک الحاکم کی روایت ہے، تو انہیں صحابہ انصار مہاجرین کا فہم پیش کیا، کہا انصار مہاجرین ان کے سامنے قرآن نازل وہ تم سے بہتر سمجھتے ہیں، تو خود صحابہ نے خارج کر دیا، وہ صحابہ کے دور کے تھے، وہ گمراہ ہو گئے، خارج ہو گئے۔ تو خوارج ہو یا تابعین ہو، علماء کوئی بھی ہو، اگر صحابہ کے خلاف ان کا فہم جاتا ہے تو پھر وہ حجت نہیں ہے، وہ دلیل آپ نہیں بنا سکتے۔ آپ بات ہو گئی، چلیں میں یہ کہہ رہا ہوں جیسے اب 100 سال بعد کوئی نئے عالم آئے اہل حدیث کا، وہی کہ میں کفایت اللہ سنابلی اور شیخ صاحبان اور سرفراز فیضی کی بات نہیں مانتا، اور پھر وہ آگے تکلیف بھائی ہم نے کب کہا کہ ہماری بات ماننا ہے؟ کوئی اہل حدیث نہیں کہتا ہماری بات ماننا ہے۔ جی یہ سوری میران بھائی کنٹینیو کریں۔ جی بولیے۔ جی میں کہہ رہا ہوں یہ نیو ورژن اہل حدیثوں میں کیوں آتا ہے؟ جو 100 سال پہلے کے جتنے بھی اہل حدیث ملتے ہیں پرانے، وہ سب تقلید کو جائز کرتے ہیں، بلکہ امام وہ تو یہ کہتے ہیں یہ اہل حدیثوں کا مذہب ہے، وہ مطلب مذہب بیان کر رہے ہیں۔ آپ پھر غلط لائن پہ چلے گئے۔ آپ نے شروع کیا تھا تقلید کو جائز قرار دیں گے یا پتہ نہیں کیا تقلید کا حکم بتانے آ رہے تھے۔ کسی شرعی حکم ثابت ہوگا یا تو قرآن سے یا صحیح حدیث سے یا صحابہ کرام کے اقوال آپ پیش کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ادھر ادھر کی باتیں پیش کریں گے وہ دلیل نہیں ہے، تو وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ آپ ٹاپک کو شروع کیجیے نا کہ ہم آپ کے علماء کے کچھ حوالے بتاتے ہیں، وہ صحیح ہے غلط، ہمیں اتفاق ہوگا تو کہیں گے اتفاق ہے، اتفاق نہیں ہوگا تو کہیں گے اتفاق نہیں ہے۔ یہ کوئی نارمل چیز ہمارے لیے، یعنی کسی بھی جب ائمہ اربعہ اتنے بڑے بڑے ائمہ ہیں ان سے ہم اختلاف کر لیتے تو ہمارا کوئی عالم ہے جو اہل حدیث کہتا ہم کیوں نہیں اختلاف کریں گے؟ تو یہ دوسرا ٹاپک ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ جائز ناجائز کی بحث چھیڑ رہے ہو تو اس کے لیے آپ جو ہے شرعی دلیل لانا پڑے گا آپ کو، یہ ادھر ادھر کے حوالے نہیں چلیں گے۔ جی میران بھائی آپ بھی بتائیے۔ آپ میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے ہو گیا، میں کہہ رہا ہوں ان لوگوں پہ حکم کیا لگے گا؟ یعنی جنہوں نے تقلید کو جائز دکھایا پھر آپ اس پہ کیا حکم لگائیں گے؟ ٹھیک ہے ایک منٹ آپ پہلے تسلیم کیجئے کہ قرآن و حدیث سے یعنی جو اصل نصوص شریعہ ہے اس سے آپ تقلید کا حکم ثابت نہیں کر پائے، پھر ان لوگوں پہ کیا حکم لگے ہم آپ کو بتائیں گے۔
पहले आप तस्लीम कीजिए, आपने शुरुआत ये की थी, रिकॉर्ड है आपकी बात, रिकॉर्ड है, आपने शुरुआत इस आपने जो एंट्री मारी है तकलीद का हुक्म बताने के लिए, अब वो हुक्म बताने से आप अपनी आजी तस्लीम कर लीजिए, आप तस्लीम कर लीजिए कि आप तकलीद का हुक्म नहीं बता सकते, आपको नहीं पता, आप उसको जायज साबित नहीं कर सकते तकलीद को, ये बता दीजिए, फिर दूसरा टॉपिक शुरू कीजिए, फिर स्विच कीजिए टॉपिक। बहुत सही, बहुत अहम बात बोली शेख जी। जी मीरान भाई, क्या आप वो पिछला टॉपिक जहां से स्टार्ट किए थे, क्या उसमें एक्सेप्ट करते हैं कि एटलीस्ट आज नहीं आपके पास कोई दलील, आज आपके पास कोई दलील, और दलील है तो पेश कर दो, नहीं है तो फिर कल आपको बहस करना, कल आइए, दलील लेकर आइए, बात कीजिए, लेकिन आज टॉपिक स्विच नहीं कर पाएंगे, आप स्विच करना हो तो कोई पहले टॉपिक के बारे में बताइए। ठीक है, मैं कह रहा हूँ आप ही की स्ट्रीम के अंदर आप ही ने तकलीद की तारीफ में कहा था कि हम जो है सलफ की बात मानते, इसलिए हम सलफी हैं, और ये बात सरफराज फैजी साहब ने भी कही थी, आपने भी कई बार कही है, और मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग भी क्लिप में शॉर्ट हैं। आपने खुद कहा कि हम सलफ को मानते हैं और उनकी बात को मानते हैं, तो जब आप सलफ से बात साबित हो रही है तो फिर मैं पूछता हूँ उन पे क्या हुक्म लगेगा? भाई आप एक जगह तकलीद को जो बात टॉपिक आप चेंज कर रहे हैं, आप तकलीद का हुक्म बताइए, शरई दलाइल से तकलीद का हुक्म बताइए, इस टॉपिक पर बात नहीं कर सकते, नो प्रॉब्लम, आप इस टॉपिक को क्लोज कर दीजिए, बोलिए कि हमें नहीं पता, हम नहीं बात कर पाएंगे, हमारे पास कोई दलील नहीं, तैयारी करके दोबारा आएंगे, फिर टॉपिक स्विच कीजिए, मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। देखिए मेरे पास उसकी भी दलील है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कुरान से भी साबित कर दूंगा, हदीस से भी साबित कर दूंगा, साबित करो कुरान हदीस से। ठीक है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब सलफ ने हुक्म दिया तो उन पे क्या हुक्म लगेगा? टॉपिक मत चेंज करो, आप तकलीद का हुक्म पहले साबित करो, तकलीद का हुक्म साबित कैसे प्रॉब्लम, आप इसको छोड़ो, कह दो कि हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं साबित कर सकते, फिर दूसरा टॉपिक शुरू करो, आप कोई मसला नहीं है। नहीं हजरत, मैं तो इतने हवाले जात दिखाऊंगा, मतलब तो दिखाओ ना, प्रॉब्लम क्या, दिखाओ ना, कौन मना करके रखा मेरे भाई, वेलकम, दिखाओ किधर है तकलीद का हुक्म? जी मैं दिखाता हूँ, आप ही के घर से पहले दिखा देता हूँ, फिर मैं उसके बाद दिखाऊंगा। हमको वो दलील है, हमारा घर हमारी दलील नहीं, शरीयत के मामले में कुरान दलील है, हदीस दलील है, साहबे किराम का फहम है, इन तीनों से दिखाओ, बाकी कहीं से नहीं चाहिए। ठीक है, गैर मुकल्लिदों के शेखुल जनाब मौलाना सैयद नज़ीर भाई ये तो नहीं चल पाएगा, ये हम नहीं चलने दूंगा, किसी कीमत पर नहीं चलने दूंगा। आपको पुराना टॉपिक चेंज करना है, चेंज करो, मैं आपको इख्तियार देता हूँ ना, मैं कहता हूँ चेंज करो, आपको हमारे किसी आलिम की किसी बात को लेकर बात करना, मैं रेडी हूँ बात करने के लिए, लेकिन आप ये कहो कि तकलीद आप साबित नहीं कर सकते, या बोलो मुझे टाइम चाहिए, अगले स्टेज में लेकर आओ, लेकिन जो शुरू किया था आपने उसको अंजाम तक पहुंचाओ। मैं ये कह रहा हूँ जो सलफ के फिर हुक्म क्या लगेगा, मेरा बात ये है कि आप पहले उनको हुक्म क्या लाए, मैं उसको जवाब दूंगा। ये टॉपिक आप चेंज कर रहे हो ना, पहला टॉपिक क्लोज करो, फिर दूसरा टॉपिक शुरू होगा, तकलीद का हुक्म बताओ, नहीं तैयारी है, तैयारी करके आओ, आपसे नहीं हो सकता, अपने उलमा को लेकर आओ, पूरी दुनिया को लेकर आओ, तकलीद का हुक्म बताओ। मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो मेरी बात तो सुनो। मैं तो बता चुका हूँ, एक नहीं कई स्ट्रीम में बता चुका हूँ तकलीद का क्या हुक्म है, शिर्क है, हराम है, बिदअत, बता चुका हूँ, आप बताओ, आप तकलीद को क्या मानते हो बताओ। जी सुनिए, आपने कहा शिर्क है, बिदअत है, यानी जो तकलीद को जायज कहता है, बात हो चुकी है, आप बताओ, आपने दावा शुरू किया, ये टॉपिक नहीं है कि हम क्या करेंगे, आपने एंट्री मारी है, तकलीद को जायज साबित करने के लिए, जायज साबित करो। मैंने ये कहा है कि मैं सलफ से तकलीद के जवाइज के फतवे दूंगा, मैंने ये कहा था, और आपने कहा तकलीद शिर्क है, तो मैं कह रहा हूँ जब अहले हदीसों के उलमा कहते हैं ये अहले हदीसों का मजहब है, सलफ से जो आप 100 साल पुराने उलमा को मुराद ले रहे हो, वो उस सलफ को हम मानते नहीं, तो क्या फायदा उनके हवाला देके, हम उनकी फहम को हुज्जत नहीं मानते, आप हमसे बनवाने आए ना, तो मैंने वजाहत कर दिया सलफ से कौन मुराद है, साहबा मुराद है, तो आप कुरान से लाइए, हदीस से लाइए, साहबा से लाइए, यहाँ से अगर तकलीद को जायज साबित नहीं कर सकते तो टॉपिक चेंज कर दीजिए, कोई मसला नहीं है। अरे अभी अता बिन अबी रवाहा 100 साल पहले के नहीं है, ये खैरुल कुनून के हजरत, कैसी बातें कर रहे हैं? अरे भाई आप कुरान हदीस ताबी है, ताबी है, हाँ, लेकिन ताबी नहीं है ना, इनकी बात भी, इनकी बात हुज्जत नहीं है ना, अभी यानी ठीक है, चलो हम नीचे उतर के अता भी, एक मिनट सुनो, चलो हम अता रहमतुल्लाह पे बात कर लेते हैं। आप तस्लीम करो कि आपके पास तकलीद के लिए ना कुरान से दलील है, ना आपके पास हदीस से दलील है, ना आपके पास सहाबा के अक़वाल से दलील है, फिर चलो इमाम अता क्या कहते हैं वो भी सुन लेते हैं। आपको तस्लीम है कि आपके पास तकलीद को जायज साबित करने के लिए कुरान से दलील नहीं है, हदीस से दलील नहीं है, सहाबी से दलील नहीं है, आप इमाम अता से दलील पेश करोगे,
आपको ये तस्लीम है, तो चलो वो दलील भी आपकी देख लेते हैं। मेरे पास सबसे दलील है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि हुक्म क्या कुरान लगेगा। और हदीस सहाबा से शुरू करो ना। अरे मेरी बात तो सुने ना, मैं कह रहा हूँ सलफ पे हुक्म क्या लगेगा, आप ये बताए ना। आपने ये कहा कि जो दूसरा टॉपिक है, ये दूसरा टॉपिक है, क्या हुक्म लगेगा, क्या हुक्म लगेगा। हम तो यहाँ पे कोई शिर्क करता है उसमें भी हुक्म नहीं लगाते। आप बिदअत की बात करें, तकलीद को हम शिर्क भी मानते हैं, बिदअत भी मानते हैं। बाज तकलीद हमारे नजर में शिर्क है, बाज तकलीद हराम है, बाज तकलीद बिदअत है। हुक्म लगाने का मसला अलग है। अरे भाई, जो आदमी शिर्क कर रहा है, बरेलवी है या कोई है, देवबंदी है, जो शिर्किया बात कह रहा है, हम उस पर भी हुक्म नहीं लगाते। किसी पर फतवा लगाने के लिए, हुक्म लगाने के लिए, किसी शख्सियत को मेंशन करके उस पर हुक्म लगाना एक अलग मसला है। बाकी जो फेल है, अब एक आदमी कब्र को पूजा कर रहा है, उससे मदद मांग रहा है, शिर्क है। लेकिन वो जैद नाम का आदमी, बकर नाम का आदमी ऐसा कर रहा है, उसके बारे में आप क्या कहते हो? ये हुक्म हम नहीं लगाएंगे। तो ये फर्क समझो। आप बहरहाल आप क्या आए हो यहाँ करने के लिए? आप यहाँ पर तकलीद को जायज साबित करने के लिए आए हैं। तकलीद के जवाज का सबूत कुरान से दीजिए, हदीस से दीजिए, सहाबा से दीजिए। अगर इन तीनों से नहीं है तो बोलिए भाई इन तीनों से हमारे पास कोई दलील नहीं है, हम इमाम अता का कोई कौल लाने जा रहे हैं। देखिए मैं क्या साबित कर, मैंने कहा आप ये कहते हैं हम सलफी है, तो सलफ में तकलीद को जवाज से फतवे पे उन पे क्या हुक्म रहेगा, मेरा सवाल ये है। मैंने सलफ से बता दिया ना, सलफ। अरे भाई, मैंने एक बार फिर वाज़ेह करता हूँ, सुनिए एक बार मैं फिर वाज़ेह करता हूँ। ये बहुत बड़ी गलतफहमी आपकी भी और बहुत सारे लोगों की। जब हम ये कहते हैं सलफ, तो लोग क्या समझते हैं कि पुराने जितने उलमा है, 100 साल पहले, 2 साल पहले, 300 साल पहले, ये सब सलफ, इनको हम हुज्जत माने। नहीं, अच्छी तरह से ये बात समझ लीजिए कि हमारे यहाँ जब हम ये कहते हैं कि सलफ का फहम हुज्जत है, तो उस सलफ से मुराद असलन सिर्फ और सिर्फ सहाबा होते हैं, सिर्फ और सिर्फ सहाबा होते हैं। और जब हम असलाफ कहते हैं, अपने उलमा को सलफी उलमा कहते हैं, भाई सलफी तो आज के लोग भी 100 साल के बाद सलफी बन जाएंगे आने वालों के लिए, लेकिन इनका फहम हुज्जत नहीं है। इनके फहम के हुज्जत होने के लिए कोई दलील नहीं। लेकिन सहाबा का फहम, ये वो सलफ हैं जिनके फहम के हुज्जत होने के लिए दलील है, जिनके मनहज के सही होने के लिए दलील है कुरान और हदीस में। तो जब हम सलफ कहते हैं, हमारे मुराद सहाबा होते हैं। असलन सहाबा के साथ आप ताबीन, अतबाए ताबीन में शामिल कर लो, बशर्ते कि इनकी बात सहाबा के खिलाफ ना हो। असलन सलफ हमारे यहाँ सिर्फ सहाबा है। मैंने कई बार इस हिस्ट्री में वाज़ेह किया, जब हम अपने आपको अहले हदीस कहते हैं तो हदीस कुरान को भी कहते हैं, हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को भी कहते हैं, सहाबा के आथार को भी हदीस कहते हैं। जब हम कहते हैं अहलुल हदीस, जो आप कहते हो ना सलफ कहते हो, अरे भाई अहलुल हदीस का भी ये मतलब है, कुरान वाले, हदीस वाले, सहाबा वाले, तीनों का नाम, तीनों का नाम जो है हदीस है। कुरान का नाम हदीस है, फरमान रसूल का नाम हदीस है, सहाबा के आसार को भी हदीस, मौकूफ हदीस कहते हैं, उसको भी हदीस बोलते हैं। ये अहले हदीस का मतलब, यही तो सलफियत का मतलब है। ये दोनों मुतरादिफ है, सलफी अहले हदीस एक ही बात है, कोई फर्क नहीं। ऐसा नहीं सलफी कह के हमने जाके 100 साल पुराने उलमा को भी इंक्लूड कर लिया, उनका भी हुज्जत है। नहीं। तो पहले समझ लीजिए कि जो हम कहते हैं ना, आप आए हो सलफ से साबित करने के लिए, सहाबा से साबित करो ना, कौन आपको मना कर रहा है? या आप कह दो कि सहाबा से कोई दलील नहीं, हम किसी बात के आलिम का नाम लेंगे। नहीं, तो इसको नहीं सुने, मेरी बात सुने। आपने अभी जो मेरी बात चल रही ना, वो सलफ पे हमारी बात चल रही, तो मैंने कहा हुक्म लगाया। देखिए 100 साल बाद आके अगर आपकी बातों को कोई अहले हदीस कह देगा कि भाई हम आप कह दो तकलीद के जायज होने की कोई दलील आपके पास नहीं है। उन्हें तो सिर्फ सलफ के अखबार में कितने हम तकलीद से जुड़े 10 टॉपिक पे बात करने के लिए तैयार हूँ। पहले एक टॉपिक क्लोज करो, 10 नहीं 100 टॉपिक पर बात करूंगा मैं आपसे, लेकिन एक टॉपिक जो आपने शुरू किया उसको क्लोज करो पहले। एक टॉपिक जो आपने शुरू किया उसे बंद करो पहले। तकलीद के जायज होने की कोई दलील आपके पास नहीं, इसको बंद करो, 100 टॉपिक पे बात करो, डेली आओ स्ट्रीम में तकलीद पे बात करो, हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन एक टॉपिक शुरू करो, खत्म करो, दूसरा टॉपिक शुरू करो। पहले ये टॉपिक खत्म करो, पहले ये टॉपिक खत्म करो कि तकलीद के जवाज की दलील आपके पास ना कुरान से, ना हदीस से, ना सहाबा से। मैं दलील दे दूंगा, आप मुझे दलील भाई। वेलकम, सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाह। जी शेख सुनते हैं, बताइए मीरान भाई दलील दे दीजिए। हाँ मेरी सुने, मैं कह रहा हूँ जैसे, हाँ बिस्मिल्लाह, मैं कह रहा हूँ जितने भी ये सलफ थे, अगर ये कह रहे हैं ये अहले हदीसों का मजहब है, ठीक, यानी एक आपकी जितनी भी जमात के आइम्मा गुजरे हैं, जहाँ से शुरुआत हुई है, इब्न तैमिया से लेके, मैं ऐसा नहीं करने दूंगा ना, मुझसे बात करना है तो टॉपिक शुरू किया उसको क्लोज करो, फिर दूसरा टॉपिक शुरू करो।
पहले ये टॉपिक बंद करो कि आपके पास कुरान से, हदीस से, सहाबा के अक़वाल से तकलीद के जवाज की कोई दलील नहीं है, ये आप मान लीजिए। उसके बाद आप टॉपिक पे बात कीजिए ना कि किसी शख्स ने क्या लिख दिया, क्या कह दिया। हाँ, मैं आपके घर से हवाले कह दो, आज रेडी नहीं है, अभी आप नेक्स्ट मौजूद पे जाना कल आ जाओ, आप कह दो आज बात नहीं कर पाऊंगा। सलफी उलमा ने क्या कहा उसके ऊपर हुक्म, तो वो बात करेंगे, वो भी टॉपिक हो सकता है, उस पर भी बात कर लेंगे, उस पर भी बात कर लेंगे, हम कहाँ की बात नहीं करेंगे, लेकिन पहला टॉपिक क्लोज करो। आपके पास कोई दलील नहीं तकलीद की, ना कुरान से, ना हदीस से, ना सहाबा से। जी शेख, कम से कम 6 बार आप बोल चुके हैं कि क्लोज करो, एक आखिरी 7वीं बार बोल दीजिए क्लोज करो। फिर उसके बाद अगर वो फिर से वो बात के उलमा पे जाते, इब्न तैमिया पे गए वगैरह, अगर वो बात के उलमा पे जा रहे हैं तो हम ये समझ लेंगे ये अगर बाहर जाएंगे दोबारा नहीं, हम इस बहस में जब तक ये एतराफ नहीं करेंगे, वैसे नहीं अपने मुंह में मिठू बने, नहीं, आप जब तक एतराफ नहीं करोगे हम टॉपिक नहीं बदलने देंगे, वरना आप बाहर जाओ, बहन को बाहर निकालो, दोबारा दूसरा टॉपिक लेके आओ आप। या तो अगर कंटिन्यू करना है, अगर इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाना है तो आप एतराफ करो, आपके पास कुरान और सहाबा से दलील नहीं है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर ये कहो कि नहीं हम मान लिए और टॉपिक स्विच कर दिए, ये नहीं हो सकता। आप इनको बाहर करो जैद भाई, दोबारा इनको वापस लो और टॉपिक चेंज करेंगे, बात करें इस टॉपिक पे। इनके पास कोई दलील नहीं है, तकलीद को जायज कहने आए थे, तकलीद के जवाब की इनके पास कोई दलील नहीं है। या तो इसको तस्लीम कीजिए कोई दलील नहीं है, या बाहर जाइए, दोबारा टॉपिक चेंज करके फिर से आइए। जी मीरान भाई बताइए, अभी हम सुनना चाहते हैं दलील आपसे, बताइए। मैं कह रहा हूँ, अच्छा मैं ही कह रहा हूँ, जब मैं आपके घर के हवाले जात दिखा रहा हूँ तो आपको ये चाहिए नहीं, भाई ये दलील थोड़ी है, हवाले जात की बात बता चुके हैं शेख। देखो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। एक मैसेज जाना चाहिए, इतने देर से लोग सुन रहे हैं, उनका वक्त जाया कर रहे हो, उनके पास ये मैसेज जाना चाहिए कि आप तकलीद को जायज साबित करने आए थे, आप साबित नहीं कर सके, फिर आप स्विच करो ना टॉपिक कि फला शख्सियत ने ये कह दिया, उसका क्या हुक्म लगेगा, हम बात कर लेंगे उस पे। लेकिन इस वक्त सिर्फ आप तकलीद के जवाज की शरई दलील दो, दे सकते हैं तो दो, नहीं दे सकते हैं तो कह दो हमारे पास दलील नहीं है, फिर टॉपिक स्विच करना। और अगर कुछ नहीं बोलना तो बाहर जाओ, टॉपिक चेंज करके आओ। आप ये झूठ बोल रहे हैं। पहली बात मैंने सुने, मैं कहता मैं सलफ से तकलीद के साबित होने मैंने बता दिया। एक मिनट, कितनी बार बात हो रहा हूँ। आपने कहा मैं सलफ, मैंने वाजे कर दिया ना कि आप हमसे बात करने आए हो ना, जाहिर सी बात आप हमसे बनवाने आए हो सलफ, तो मैंने क्लियर कर दिया। इससे पहले कल भी जाके कोई पिछली स्ट्रीम सुन के देखे, कल की स्ट्रीम में मैंने कहा कि सलफ से मुराद हम असलन सिर्फ सहाबा को मानते हैं, सहाबा के साथ उनको भी शामिल करेंगे, बाद के लोगों को, ताबीन अतबा ताबीन को, बशर्ते कि उनकी बात उनसे मैच करें, उनके खिलाफ ना हो। ये बात पहले कही हुई है पिछले स्ट्रीम में। अब अगर आप हमसे आके सलफ से मनवाना चाहते हो तो आप सहाबा से साबित करो, ये हमारे सलफ है, यही हमारे सलफ है, हमारी शर्तों के हमारे मेयार पर आप साबित करो। आप तय करोगे कि हम किस सलफ को मानते हैं। तो अगर आपके पास कुरान से नहीं है, हदीस से नहीं है, सलफ से भी नहीं, सहाबा से नहीं है, तो आप कहते हो कि भाई हम इस मेयार पे तकलीद को जायज साबित नहीं कर पाएंगे। हाँ, बाकी दूसरे उलमा ने, तो दूसरे उलमा से तो शरई मसला साबित ही नहीं होगा। बाकी आप ये पूछ सकते हो कि दूसरे उलमा ने ये कहा, इसके बारे में आप क्या कहते हो, हम अपनी राय दे देंगे। सुने मेरी बात, सुनिए, देखिए पूरी सुन ले मेरी बात। देखिए हर जमात का एक जो ना एक मजहब चला आ रहा होता है, यानी जैसे अब उलमा देवबंद को उठाएंगे, उनकी बात चली आ रही होगी, ऐसे ही हम अहले हदीसों को जब उठाते ना, और यानी शुरू से देखते हैं हमने तैमिया से अब तक, यानी सबसे उसके हवाले मिलते हैं तकलीफ। ये मौजूद सेट की बात हो, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। आपने जो बात शुरू की हमारे दलील नहीं है, नहीं चलेगा, आपको चक्कर क्या आना चाहिए था। इनको बार को टॉपिक बदल के आए, वेलकम। मैं कहता हूँ टॉपिक चेंज करके आप आए, या तो आप एतराफ करो, हम यही कंटिन्यू करते हैं आगे, एतराफ नहीं करना बाहर निकालो उनको, और दूसरा टॉपिक चेंज करके फिर से मैं बात करूंगा इसके लिए। मैं जी मेरे ख्याल से हमने इनको 7-8 मौका दे दिया, आखिरी मौका है। हाँ जी बताइए मीरान भाई, कोई दलील है तो दे दीजिए। आखिरी बात कह रहा हूं कि कुरान, हदीस, सलफ यानी सहाबा से दलील दे दीजिए तकलीद के जवाज की। दे सकते हैं तो ठीक है, नहीं दे सकते हैं टॉपिक क्लोज। आप या तो इतराफ करो या बाहर निकलो, आप फिर दूसरा टॉपिक लेके आओ आप। जी फिर से ले लेंगे आपको, दूसरे मौजू पे लेंगे तभी आप ये बात करिएगा। अभी ये मौजू पर क्लोज कर दीजिए, कोई दलील है तो पेश करिए, नहीं है तो मैं कह रहा हूँ उन्होंने ये लिखा है। देखिए मैं हूँ आमिर शख्स, मैंने अहले हदीसों का एक कॉल पढ़ा, यानी ये अहले हदीसों का मज़हब साबित करने आए थे। नहीं जैद भाई मादरत करके इनको निकालिए, इनको दोबारा लीजिए। मैं आपको कहता हूँ दोबारा लीजिए, लेकिन ये टॉपिक पे नहीं बात करेंगे। दोबारा इनको लाइन में रखिए, किसी और को लीजिए, उसके बाद दोबारा फिर हाँ इनको पीछे कीजिए, दोबारा इनको फिर लाइए, हम बात करेंगे। बस अब हम फिर लेते हुए टॉपिक क्लोज हो गया, और ये हमने क्लोज हो गया।
अब मैंने इनकी दिल की तमन्ना भी पूरी करेंगे। मैंने इसरार ये पैगाम देने के लिए किया लोगों को कि भाई ये आए थे सलफ से साबित करने के लिए या शरीयत से साबित करने के लिए। इन्होंने कुरान हदीस या जिनको हम सलफ मानते हैं साहबा, उनसे कोई दलील नहीं दे सके तकलीद के जवाज के बारे में। ये जो मानते हैं तकलीद, ये बार बार अहले हदीसों को जो है टॉर्चर करते हैं, उनको परेशान करते हैं आवाम को, तकलीद का हुक्म बताओ, हुक्म बताओ। मैं कई बार बता चुका, तकलीद कोई हराम होती है, कोई शिरक होती है, कोई बिदअत होती है। हम तो खुलेआम बताते हैं, दलील भी देते सब हर चीज की। और एक किस्म होती है जो तकलीद ही नहीं होती। आप बताओ, हम तो कुरान से दलील देंगे। हम तकलीद को हराम का शिर कहेंगे तो कुरान से दलील देंगे, हम तकलीद को हराम कहेंगे तो कुरान से, हदीस से या सहाबा से, इन तीनों में से हम किसी से दलील देंगे। आप भी इनसे दलील देके बताओ। नहीं दे सकते, फलां ने ऐसा लिख दिया, उसके बारे में आप क्या कहते हो, आके आप पूछ सकते हो, दरवाजा खुला है। अगर किसी शख्सियत ने कोई बात कही है, वो उसकी बात दीन तो नहीं बन सकती, लेकिन उस पर हमारी राय क्या है ये आप हमसे जान सकते हो। जी शेख, तो एक मौजू कंप्लीट हुआ। अब मैं फिर से उनको अपनी तमन्ना पूरी करने के लिए सेकंड टाइम ले रहा हूं। मीरान भाई, फिर एक बार आपका इस्तकबाल है हमारी स्ट्रीम में। अब किस मौजू पे आप बात करना चाहते हैं? अब मौजू बताइए, वो मौजू पे रहिए। हाँ जी, मीरान जुबैरी पार्ट टू स्टार्ट हुआ जी। मीरान भाई अनम्यूट करिए प्लीज, अनम्यूट करें अपने आप को। कहीं चले गए आप? आपकी तमन्ना पूरी करने के लिए हमने आपको फिर से लिया पार्ट 2। जी कहाँ है? नहीं लगता है कि इतनी देर में क्या हो गया। हाँ ठीक है, किसी और को लीजिए, फिर इनको लीजिए वापस। ये आएंगे ना भाई, स्टेज रखिए इनको। ठीक है इंशाल्लाह। तो यहाँ पे इस बात का भी तो फैसला हो जाता है ना, कौन सलफ़ को मानता है। सलफ़ असल सहाबा है, सहाबा का कौल हुज्जत है, और गैर सहाबी का कौल हुज्जत ये भी नहीं मानते ना हम मानते। तो फिर वहाँ से दलील देना क्या बनता है? दलील तो कुरान हदीस से या सहाबा के कौल से साबित होगी, और जब वो चीज़ नहीं है तो फिर दलील है ही नहीं, वो दलील कहलाएगी ही नहीं। तो मतलब क्या है वो चीज़ देखे। तो पहले तस्लीम कर लो, शेख किफ़ायत ने सही कहा, पहले आप ये तस्लीम कर लो कि आपके पास कुरान हदीस से और सहाबा से कोई दलील नहीं है, फिर हम अगले दूसरे जो कॉल तुम दिखा रहे हो उसके ऊपर बात करते हैं।